میرے عزیزو، جیسا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے، اٹس بیسڈ آن لوک چیپٹر 8 جو آج کی ہماری پیرابل ہے، پرسسٹنٹ ویڈو اینڈ انجسٹ جج، کہ وہ بیوہ جو مستقل قاضی کے پاس جاتی رہی۔ ہم اپنے پیرابل کے سیریز میں ہم خداوند یسوع مسیح کی پیرابلز کو فوکس کر رہے ہیں لوکا کی انجیل میں، اور ہم آہستہ آہستہ سفر کرتے کرتے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم کے نزدیک پہنچنے والے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے سفر میں جب مختلف گاؤں اور شہروں میں سے گزر رہے تھے ٹورڈ جیروسلم، ہی واز انگیجنگ ود دا فیریسیز، ود دا ٹیچرز آف دا لا، ود دا اسکرائبز، اس کے ساتھ ساتھ سنرز، ٹیکس کلیکٹرز، اس کے ساتھ ساتھ جو عام پبلک تھی وہ خداوند یسوع مسیح کو سننے کے لیے آتی تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایز اے ٹیچر، ایز اے ریبائی، ہی واز ٹیچنگ کنگڈم مسٹریز۔ اور کنگڈم مسٹریز کو جو بھید ہیں آسمان کی بادشاہی کے، متی کی انجیل میں جب شاگردوں نے پوچھا کہ خداوند تو ان سے تمثیلوں میں، کہانیوں میں کیوں بات کرتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بیکاز دیز پیرابلز آر دا مسٹریز آف ہیون، دیز آر دا مسٹریز آف دا کنگڈم۔ یہ عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں دی گئی ہے، یہ صرف جو بادشاہت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، صرف ان کی زندگیوں میں یا ان کے لیے یہ بھید پائے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سنڈے کون سی پیرابل کی تھی جی؟ کسی کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ دیکھیں حالے 8 دن ہوں، حالانکہ میں ریمائنڈر بھی کر دینا۔ نہیں یاد جی؟ 16 باب میں مس مینجمنٹ یاد ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب یاد آئی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، شروڈ مینیجر، اور خداوند یسوع مسیح نے اس مینیجر کی کیا کی تھی؟ تعریف کی تھی کہ اس نے اپنے اگلے 50 سالوں کے لیے اپنے فیوچر کو کیا کر لیا؟ سیو کر لیا۔ لیکن ہم جو ایماندار لوگ ہیں، جو نور کے فرزند ہیں، دے آر ایون نائیو، وہ دنیا کے جو تاریکی کے فرزند ہیں ان سے زیادہ سمارٹ نہیں ہیں، وہ بڑے بھولے ہیں، بڑے سادے ہیں، اور وہ دنیا داری کے معاملات کو بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن یہ بندہ اور دنیا کے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنا فیوچر سیکیور کر جاتے ہیں، لیکن روحانی لوگ اپنا فیوچر آسمان پر سیکیور نہیں کرتے۔ So that was the challenge۔ میرے عزیزو، اس دوران اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ رستے میں ہیں، اور جو پیرابل ہم یہاں پر پہنچے ہیں 18ویں باب میں، وہ اس میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ ہیں، and now he is referring to end days۔ اب خداوند یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ میں یروشلم جا رہا ہوں، لیکن جب اینڈ ڈیز آئیں گے، جب ججمنٹ آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ججمنٹ کے لیے یسوع مسیح آپ دیکھتے ہیں 17ویں باب میں اس نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ٹھوکریں لگیں گی، لوگ تمہیں ملامت کریں گے، تمہیں نکال دیں گے۔ اور پھر شاگردوں نے کہا او خداوند یہ تو بڑے مشکل کے دن ہوں گے، تو پھر ہم کیا کریں؟ یسوع مسیح نے کہا ہیو فیتھ، اپنے ایمان کو کیا رکھو؟ قائم رکھو۔ اینڈ دین شاگردوں نے پرے کی، یہ بڑی اچھی دعا ہے، 5ویں آیت میں ہے 17ویں باب کے چیپٹر 17 ورس 5 میں لکھا ہے، اس پر رسولوں نے خداوند سے کہا ہمارے ایمان کو بڑھا۔ کیا دعا کی شاگردوں نے؟ ہمارے تنخواہ کو بڑھا، ہمارے بینک بیلنس کو بڑھا، ہمارے انسینٹیو کو بڑھا، ہماری عمر کو بڑھا، ہمارے کپڑوں کو بڑھا، ہمارے مکان کو بڑھا، یا کیا بڑھا؟ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ That was the most important thing you need۔ کس کو بڑھا؟ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ ایک گیت بڑا پاکستان میں، میرے انڈیا میں گایا جاتا ہوگا، آپ نے شاید سنا ہوگا، اے یسوع زندہ، اے یسوع میرے خدا، ایمان ہمارا بڑھا۔ سنا یہ گیت آپ لوگوں نے؟ کیوں جی سنا؟ نیکسٹ سنڈے پھر گائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا بولیں؟ اے یسوع میرے خدا، ایمان ہمارا بڑھا۔ یہ بڑا اچھا گیت ہے۔ یہ بیسڈ آن دس ورس کہ کیا شاگردوں نے دعا کی؟ ہمارے ایمان کو بڑھا۔ such a powerful model of prayer۔ جی خداوند یسوع نے کہا تمہیں زیادہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنا ایمان چاہیے؟ کلو، 2 کلو، 4 کلو؟ رائی کے دانے جتنا، چھوٹا سا، جسٹ اے مسٹرڈ سیڈ، اگر اتنا بھی ایمان ہوا۔ ایکچولی خداوند یسوع مسیح ناؤ پریپیئر کر رہے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آنے والی ہیں اب، اور جو عدالت سے پہلے کا جو سین ہوگا، اس کے لیے یو شوڈ، کون سی چیز تمہیں رکھے گی سنبھال کر؟ یور فیتھ۔ ٹھیک ہے جی، ایمان۔ 11ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جی،
اور ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے جاتے خداوند یسوع مسیح سامریا اور گلیل کے راستے میں سے گزرے ہیں، کوڑیوں کو صاف کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح سے سوال ہوا ہے. آپ نے دیکھا جی خداوند یسوع مسیح سے سوال بڑے کرتا ہے. سوال کرنے والے کون لوگ ہیں موسٹلی؟ شرع کے عالم، فقیہ اور فریسی. They always trying to test Jesus. They always trying to tease him. They always trying to trap him کہ اس کی باتوں کو پکڑیں. 20ویں آیت میں فریسیوں نے پوچھا جی، اور سوال کیا پوچھا انہوں نے؟ خدا کی بادشاہی کب آئے گی؟ ویلڈ کوشچن ہے. آج بھی کلیسیا یہ سوال کرتی ہے، کلیسیا سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جی خدا کی بادشاہی کب آئے گی. ہیر خداوند یسوع مسیح نے سب سے پہلے تو خدا کی بادشاہی کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے. اٹ از ناٹ اے جیوگرافیکل کنگڈم. یہی بات پلاطوس کی پیشی جب ہوئی یسوع مسیح کے سامنے، تو پلاطوس نے یسوع مسیح سے پوچھا کہ بھائی کیا تو واقعی یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر میں بادشاہ ہوتا تو سپاہی میرے لیے کیا کرتے؟ لڑتے ہیں. کہ میری بادشاہی اس زمین کی نہیں ہے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا لینا چاہیے کہ جو آسمان کی بادشاہی ہے، دس کانسیپٹ از ناٹ بیسڈ آن اے جیوگرافیکل ایریا، اٹس بیونڈ. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ خدا کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی. اٹ از جسٹ ناٹ لائک کہ انگلینڈ نے انڈیا کو آ کے کالونی بنا لیا، تو جناب 6 صدی میں محمد بن قاسم آ کر اس نے عرب نے آ کر بنا لیا. تو یہ اس طرح کا نہیں ہے کہ کوئی ملک یا کوئی فوج آپ پر حملہ کرے گی اور خدا کی بادشاہی کو کیا کر دے گی؟ قائم کر دے گی. اٹ از ناٹ لائک دس. بلکہ لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے. سو اٹس ناٹ بیسڈ آن جیوگرافیکل ٹیریٹری. خدا کی بادشاہی کا تعلق اسپرچولیٹی کے ساتھ ہے، مینٹل سٹیٹ کے ساتھ ہے. اٹ از این انڈرسٹینڈنگ کہ خدا میری زندگی اور میرے خاندان، میرے گھرانے پر کیا کرتا ہے؟ حاکم ہے. اس کی بادشاہی میری زندگی میں ہے. بلکہ کہا جائے گا کیونکہ دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے کہاں ہے؟ درمیان ہے. It is amongst you. It is already upon you. So it's nothing, something is coming back again. Then اب خداوند یسوع مسیح شاگردوں کو بتانے لگے ہیں کہ جی آخری دنوں میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، اباؤٹ فیوچر، کہ وہ دن آئیں گے کہ تم کو ابن آدم کے دنوں میں سے ایک کو دیکھنے کی آرزو ہوگی اور نہ دیکھو گے. اینڈ دین ہی واز ٹرائنگ، اور خداوند یسوع مسیح نے نشانات دیے، دکھ اٹھائے اور اس زمانے کے لوگ اسے رد کریں. اور پھر یسوع مسیح نے 2-3 سائن دیے ہیں جی. پہلا سائن کیا دیا ہے 24ویں آیت میں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا. سو جی کون سے دن ہوں گے جب خداوند کی دعوت لگے گی؟ کس طرح کے دن ہونے ہوں گے؟ نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اور اسی طرح ہوگا. کیا ہوگا؟ دیٹس انٹرسٹنگ. سنیے گا. 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ لوگ کھاتے پیتے تھے. They were busy in their own parties. ٹھیک ہے، لوگ کھاتے پیتے تھے. پھر کیا ہوا؟ ان میں بیاہ شادی، مطلب کوئی فکر نہیں نا، فکر نہ فاقہ عیش کر کاکا. ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی ٹینشن نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، آرام نہ موج مستی چلتی تھی. ویکینڈ پر پارٹیز چلتی تھی جناب، ویک ڈیز کے اندر نوکریاں چلتی ہیں، اور اس کے علاوہ پلاننگ ہوتی تھی جی کہ ہم نے اگلی چھٹیاں کہاں منانی ہیں. مطلب ایوری بڈی ور بزی ان دیئر اون پلیجر whatever they can afford it. So بیاہ شادی ہوتی تھی اس دن تک. کس دن تک؟ جب تک نوح کشتی میں داخل نہ ہوا اور سڈنلی طوفان نے آ کر ان کو کیا کر دیا؟ They were all wiped out. Then second example دی، جیسا لوط کے دنوں میں ہوتا تھا نا. نوح سے اب کہاں پر آ گئے ہیں؟ لوط کے دنوں میں. لوط کے دنوں میں کیا ہوتا تھا جی؟ لوط کے دنوں میں بھی کیا ہوتا تھا جی؟ لوگ کھاتے پیتے. دیٹس نمبر 1. کھانا پینا پہلے والی سیم آ گئی. ٹھیک ہے، کھاتے پیتے تھے. نمبر 2 کیا ہوتا تھا جی؟ خرید و فروخت کرتے تھے جی. نیکسٹ پارٹی ڈریس کون سا ہونا چاہیے، نیکسٹ گاڑی اگلی کون سی ہونی چاہیے، اگلا گھر کس قسم کا ہونا چاہیے، اور جناب اگلے ہم نے کون سے برانڈز ہم نے لینے ہیں، اور کس قسم کے ویکیشنز ہم نے پلان کرنی ہے. سو دیز ور آل بائنگ اینڈ سیلنگ. کیا ہوتے تھے؟ خرید و فروخت کرتے، درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے. So this is all. They have no idea کہ what's going to coming on them. They were all busy indulge in their own pleasure or physical activities. Carnality. لوگ کھاتے پیتے. کھانے پینے کا ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شاعر تھا، تو وہ آپ کو پتا نا شراب پہ بڑے شعر بنے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں. شاعروں نے بڑا شراب کو فیسینیٹ کیا ہے.
वो कहता जी अब तो इतनी भी नहीं मिलती मैं खाने में जितनी हम पी के छोड़ दिया करते थे पैमाने में, इतना कंगाल हो गया कि अब इतनी भी नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग हैं उनकी बोतलें नहीं खत्म होती, एक पे एक दूसरी पे दूसरी, दे हैव ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, वट एवर दे वांट दे गेट इट। खाते पीते थे, ब्याह शादी, मतलब एवरीबडी वाज बिजी इन देयर ओन प्लेजर, दैट वाज द आइडिया। तो क्या हुआ, लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आपने एक चीज देखी है इन दोनों स्टोरीज के अंदर, द बिलीवर्स, गॉड्स चोजन वन, elected one, until they were living among them, they were secure and safe. The day they left, जिस दिन नूह किस में सवार हुआ और जिस दिन लूत कहां से निकला, so you can see कि बाज़ औक़ात जिस तरह पतरस के याकूब के खत में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी दुआ के असर से? बहुत कुछ में आप जो मर्जी ऐड कर लें। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने लगा हूं कि रास्तबाज जब इंटरसीड करते हैं, जब प्रे करते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है। खुदा ने जब सदूम और उमोरा को तबाह करना था तो खुदावंद के फरिश्ते आए और सबसे पहले किसके पास आए? वो अब्राहम के पास। ठीक है, अब अब्राहम वाज गॉड्स फ्रेंड, तो खुदा ने कहा जी कि मैं, अब्राहम तो मेरा बंदा है, मेरा दोस्त है, और ये अपने आने वाली नस्लों को मेरे अहकाम बताएगा, मेरे कानून बताएगा खुदा का इसके साथ क्या ताल्लुक था। तो मैं जो काम करने जा रहा हूं सदूम और अमूरा के साथ, आई शुड इन्फॉर्म माई फ्रेंड अब्राहम। क्यों? क्योंकि इसका भतीजा लूत कहां रहता है? सदूम में रहता है। और सदूम और अमूरा पिक किसने किया था? लूत ने खुद किया था। इंटरेस्टिंगली, क्योंकि जब लूत के और अब्राहम के चरवाहों का झगड़ा हो गया ना, ये जो फ्रेज है ना, ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड, क्या है जी भाई? हाँ, ग्रास इज, थैंक यू जी। सो मैं उसको उलट नफी में बोल गया हूं। सो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये फ्रेज अब्राहम और लूत के झगड़े से निकली है। क्योंकि जब उनके चरवाहों के दरमियान झगड़ा हो गया तो अब्राहम ने कहा जी देख हम दोनों भाई हैं, सो लेट्स सॉल्व द इशू, इस इशू को बढ़ाए ना, हमने सारी जिंदगी इकट्ठे रहना है, तुम मेरा ब्लड हो, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो ही वाज अ पीस मेकर। अब्राहम वाज अ, खानदानों को तोड़ने की बजाय, अपना असर रखने की बजाय, उसने खानदानों को क्या करने की कोशिश की? उसने पीस मेकिंग का काम किया। उसने कहा जी ओके लेट्स डिसाइड। ने कहा चूंकि हम दोनों यहां हैं, यहां ऊपर खड़े होते हैं और देख वो सामने जमीन है, पहले तू पिक कर, तू पहले कौन सी पिक करेगा? जो तू छोड़ देगा ना वो मैं ले लूंगा। सो लूत ने ऊपर चढ़कर देखा, उसने देखा जी वाह वाह, मेरी भेड़ बकरियों के लिए जो नीचे ग्रीन है ना हिस्सा, दैट इज बेस्ट फॉर माई फ्यूचर, और मेरे प्लान मेरे रहने के लिए। बट ही वॉज अनअवेयर कि जो उसको घास हरी हरी नजर आ रही है ना, हर चमकती चीज, कहता ना क्या, हर चमकती चीज सोना। सो ही पिक्ड सदूम एंड गमोरा। एंड देन ये वो है जी कि बाज़ औक़ात हम फ्लैशिंग लाइट्स को, बाज़ औक़ात हम जो थोड़ी देर की चमक होती है उसको देखकर हम उसके पीछे क्या करते हैं? भागते हैं। बट वी डजंट नो व्हाट्स बिहाइंड दैट, व्हाट डार्कनेस लाइज बिहाइंड दिस ग्लिटरिंग इमेज। सो यहां पर आप देखते हैं जी, जिस दिन लूत सदूम से निकला। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एक बंदे से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो खुदा ने अब्राहम को कहा जी मैं सदूम और अमोरा को क्या कर दूंगा? तबाह कर दूंगा। अब्राहम ने कहा खुदावंद वो तो इतना बड़ा शहर है, लॉस एंजलिस की तरह, इन्नी आबादी, इन्ने लोग, उथे आर्टिशियस चढ़ते लोग भी रहते हैं, तो क्या होगा? ने कहा क्या पता, और हम कितने लोग हैं? 50 तो होंगे, कम है 50 से, चलो खैर। मैं कहा खुदा क्या पता वहां 50 रास्तबाज हों जो संडे आके तेरी इबादत करते हों, हैं? क्या पता वहां पर ऐसे लोग हों जो दुआएं करते हों, तो क्या तू आर्टिशियस चढ़ते लोगों भी बाकी लोगों मार देगा? तो खुदा ने कहा नो नो नो, ओके आई थिंक अबाउट इट। अच्छा चलो, मुझे अगर 40 मिल गए ना तो मैं शहर को क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। अब्राहम को थोड़ी जरा हिम्मत हुई, क्या लगा नहीं, अब्राहम ने शक भर गया, कई बार तो सारे लोग ही गरीजे नहीं होंगे, 4 फैमिलियां होंदियां ने बस। उन्होंने कहा खुदावंद क्या पता उदन अद्धे फैमिलियां ना हुई होण, हैं, बाकी लोग पार्टी करन गए होण, किते फिरन गए होण, तो फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा अच्छा चलो, अगर मुझे 30 मिल गए ना, मैं फिर भी क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। तो अगले दिन फिर अब्राहम को और थोड़ी जरूरत हुई, कहने लगा खुदावंद तो ना बच्चों का भी यूथ ने अपना प्लान किया होंगे है, तो बच्चों ने अपना प्लान किया होता है, पेरेंट्स से बच्चों के नाल जाना होंगे, एक तो वीकेंड होंगे, एक तो लंबा वीकेंड मिलता कदी कदी, सारा 5 दिन बेचारे खोते आंगरू कम करते हैं, हड्डियां सैक करदियां, तो चलो वीकेंड तो जाना चाहिए, कि की पता उदन भी
बंदे लोग आए हों। उन्होंने कहा अच्छा मुझे 20 मिल गए ना, फिर भी क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। अब्राहम को फिर शक पिया। उन्होंने कहा एक बार वेख्या सी कि सिर्फ पादरी साहब सी ते 2 फैमिलियां होर सन, 10 लोग सन, बाकी पब्लिक सारी गैप सी। तो अगर 10 लोग हुए तो खुदावंद ने कहा अच्छा अब्राहम मुझे अगर 10 भी मिल गए ना तो मैं क्या करूंगा। शायद अब्राहम बड़ा सेटिस्फाई होगा, ओके जी। वो कहने लगा चलो 10 का नंबर ठीक है, एक मेरा भरा वे लूत, एक ओदी बीवी है, अगों दियां 2 धियां ने, उन्होंने जवाई ने, चलो 8 बंदे तो मैं की कर गया, मैं सिक्योर कर गया, बाकियां का फिर खुदा ही हाफिज़ है। अल्टीमेटली भी नो कि देखें एक बंदे की दुआ से क्या हुआ है, खुदा 50 से कहां पर आया। अगेन 10 बंदे भी सदूम और अमूरा में रास्तबाज नहीं मिले, सिर्फ लूत और उसका ग्रां लूत भी भैन वाली पीछे मुड़ गए। ओ मेरा भरा पीछे रह गया है, ओ मेरा खानदान पीछे रह गया, मेरा मेकअप का बॉक्स पीछे रह गया, मैं फट जावा जरा फटाफट है। वो नवा सैट बनाया सोने का, वो तो वह करना है, वो तो रह जाएगा है, वो तो रह जाएगा। वो की करिए, नवी गड्डी मैं खरीदी है, बिल्कुल नवी ब्रांड 2022 की, एक मैं नजर वेख आवा, खातून पीछे मुड़ी है और वहीं पर नमक का क्या बन गई है, शी स्टेड देयर। जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरस कर सबको क्या कर दिया, हलाक कर दिया। तो सवाल क्या था, आसमान की बादशाही कब, व्हेन, टाइम फ्रेम पूछा गया। खुदावन यीशु मसीह ने टाइम फ्रेम नहीं दिया, खुदावन यीशु मसीह ने साइन दिए, रीड द साइन। एंड देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है, इब्ने आदम के जाहिर होने के दिन भी क्या होगा, people will caught unprepared. If you are not prepared, if you are busy in your own parties and selling and purchasing and indulging and weddings and every kind of party, इसके दिनों में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इस तरह अदालत आ पड़ेगी, you are unprepared, unexpecting. फिर सवाल ये होता है जी कि फिर क्या करें, ओके क्योंकि हम तो आदि हैं टाइम देकर चलने वाले, ठीक है। उलहरा गल है, चर्च वाला दिन टाइम नहीं वेंदे, बाकी दिनों में देखते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है तो क्या करें। देन फिर उसने इस घर से, नाउ ही इज टेलिंग द पैराबल, सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये पैराबल क्या की गई है, सुनाई गई है। सो इस पैराबल में देखा जी, सेकंड कमिंग की बात हो रही है, जजमेंट की बात हो रही है, नूह और लूत का जिक्र किया गया है, डिवीजन है, डेथ है, डेवास्टेशन है, मैरिजेस, वल्चर विल गैदर। यीशु ने क्या कहा कि उन्होंने पूछा जी 27वीं आयत में कि उससे कहा खुदावन ये कहां होगा, नाउ फ्रॉम व्हेन टू कहां पर आ गए हैं, वेयर पे आ गए हैं, ओके कब से कहां होगा। देन अगेन यीशु मसीह ने सीधा जवाब नहीं दिया, क्या बोला है, साइन क्या दिया, उसने उनसे कहा जहां मुर्दार है वहां गिद्ध क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। जहां पर तुम देखो कि पार्टी बढ़ गई है, शराब बढ़ गई है, जहां पर बदी बढ़ गई है, जहां पर लोगों की निगाहें, लोगों के काम, लोगों के दिल खुदा की बजाय, खुदा की खिदमत, खुदा की बादशाही की बजाय दुनियादारी में ज्यादा उलझ गए हैं, जहां मुर्दार होगा वहां पर क्या जमा हो जाएंगे, वहां गिद्ध। दीज आर द साइंस of any church also, any family and any believers in person as well, कि जहां पर चर्च इंडल्ज हो जाए अपने आप के अंदर, अपनी आप को देखने के लिए, और उससे खुदा के लोगों का, खुदा की बादशाही का, खुदा के मिशन का, उसके अंदर से फायर खत्म हो जाए, फ्लेम आउट हो जाए, समझे वहां पर गिद्ध क्या हो गए हैं, मंडलाने शुरू हो गए हैं। These were the signs. Then इनकरेजमेंट, ये तो सारा डरा था ना पहला, यीशु मसीह ने हवा कर देती है, सारे परेशान हो गए बेचारे, की होगा। नाउ ही इज इनकरेजिंग देम। इनकरेजमेंट कैसे किया, फिर उसने इस गर्ज से हर वक्त, नाउ आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह बादशाही की तैयारी को किससे रिलेट कर रहे हैं, अ कॉमन लिविंग स्टाइल, एवरीडे लाइफ स्टाइल। इट्स नॉट लाइक अ वीकली और आवरली, इट्स अ कॉमन कॉन्सेप्ट। आपके थॉट, आपका माइंड किस जगह पर लगा हुआ है। जैसे यीशु मसीह ने पहले कहा था ना, जहां तुम्हारा दिल होगा वहां तुम क्या करोगे, जहां तुम माल होगा वहां तुम्हारा, और जहां तुम्हारा दिल होगा वहां तुम माल भी लगाओगे, ठीक है। सो इट्स अबाउट दिस कि तुम्हारे थॉट्स कहां पर हैं, तुम्हारे माइंड सेट किस जगह के साथ
जुड़ा हुआ है। सो आपने देखा जी कि इन सारी चीजों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ पर जोर दिया है, किसी किस्म की और एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ क्या है? दुआ। नाउ व्हाट इज द प्रे डू? प्रे का मतलब यह है जी कि आपका सोच, ख्याल, दिमाग, जहन आपकी किसी एक चीज की तरफ कांस्टेंट लगी रहे। ठीक है, कांस्टेंट यू आर थिंकिंग अबाउट। जो लोग बिजनेस में होते हैं दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि जी मुझे नेक्स्ट बिजनेस कहां से मिलेगा। ठीक है, जो लोग कामकाज के आदी होते हैं, जो लोग रिलेशनशिप के आदी होते हैं, जो लोग मुख्तलिफ चीज, जिस जगह आपका इंटरेस्ट है, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट कि जी मुझे ये चीज कहां से मिलेगी। सो दोज पीपल हु आर किंगडम माइंडेड, दे आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गॉड्स किंगडम। सो हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। तो दो पर्पस हैं जी इस पैराबल के। पहला पर्पस क्या है कि हर वक्त दुआ करते रहना, और अगर जवाब नहीं भी आ रहा, 4 साल गुजर गए हैं, 5 साल गुजर गए हैं, 8 साल 10 साल गुजर गए हैं, डोंट लूज होप, उम्मीद ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें। इफ यू आर गेटिंग समथिंग, ऑलवेज ट्राई टू परसुइंग, कंटिन्यू। कहते हैं जी कि अगर किसी एक जगह पर कंटिन्यू पानी का कतरा गिरता रहे तो वो चट्टान को भी क्या कर देता है? उसमें भी सुराख कर देता है। सो पानी से चट्टान को सुराख करना अनबिलीवेबल है, बट व्हाट मेक इट हैपन? कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कमिटमेंट, फोकस। सो दैट्स व्हाट क्राइस्ट इज टीचिंग यू। सो जी आपने देखा जी कि दुआ लूका की इंजील का बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप देखेंगे क्योंकि लूका ने लूका की इंजील भी लिखी और रसूलों के अमाल भी लिखे। सो आप लूक एक्ट्स को जब आप इकट्ठा देखते हैं तो यू विल फाइंड आउट कि दुआ का जो थीम है ये लूका का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, और खासतौर पर नॉट पर्सनल प्रेयर बट कम्युनल प्रेयर। ठीक है, कौन सी प्रेयर है यहां पर? कम्युनल। कुछ लोग है ना वो पारी साहब छड्डो अपना गिरजे की जाना, घर ही दुआ कर लेगी है। ठीक है ना, छड्डो पर फैलोशिप की करनी है। उत्थे जो जाओ झगड़ा ही होंगे ने, जिहदे वाल जाओ जनाब लोग एक दूजे को पसंद नहीं करते, कोई उहदे नाल बैठ के रोटी नहीं खाता, कोई उहदे नाल बैठ के पानी नहीं पींदा, कोई उहदे नाल बैठ के चाह नहीं पींदा, किसी ने मैनूं सलाम नहीं किया, किसी ने मैनूं आ नहीं किया। मतलब वो छड्डो पर गिरजे की जाना है, गिरजा भी कोई जगह जान दी। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर किस चीज को फोकस कर रहे हैं? गैदरिंग, पब्लिक गैदरिंग। पब्लिक से मिलाद है ईमानदारों की जमात की गैदरिंग। दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सनल प्रेयर, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनल, कांग्रीगेशनल गैदरिंग एंड प्रेयर। मसलन लूका की इंजील शुरू होती है जी दुआ से। किसी को याद है लूका की इंजील किसकी दुआ से शुरू होती है? क्या हो रहा है? मैंने लास्ट संडे बताया था, लूक्स गॉस्पेल बिगन विद ज़करिया द प्रीस्ट। क्या कर रहा है वो हैकल में? बखूर जला रहा है, जॉन द बैप्टिस्ट का डैड। ठीक है, लूका की इंजील शुरू होती है ना, जिब्राइल फरिश्ता कहां भेजा गया? ज़करिया के पास, जो क्या कर रहा है हैकल में? अपनी बारी पर बखूर जला रहा है। और जिब्राइल सीधा, और बखूर का मतलब क्या है और क्या लिखा है? बाकी सारी जमात बाहर खड़ी उसका क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। तो आपने देखा जी कि लूका की इंजील शुरू किस चीज से होती है? कांग्रीगेशनल, कम्युनल वर्शिप एंड फेलोशिप। खत्म किससे होती है? खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाते वक्त उन्हें एक हाथ उठाकर क्या दी? ब्लेस किया। दिस आर अगेन प्रीस्टली एक्शन, हाथ उठाकर बरकत दी। दैट वाज अ इवनिंग प्रेयर, तामिद जो होती थी ज्यूइश में, ये उसकी तरफ इशारा है। सो लूका की इंजील शुरू कांग्रीगेशनल प्रेयर से होती है और खत्म भी किस पर होती है? कांग्रीगेशनल प्रेयर पर। सो प्रे जो है, दुआ जो है, ये लूका की इंजील का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन बियाबान में क्या की? दुआ और रोजे के साथ। ठीक है जी, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को चुना, यीशु मसीह ने सारी रात कहां गुजारी? दुआ में गुजारी। सो जीसस वाज अ मैन ऑफ प्रेयर। इवन स्लीप पर जाने से कबल खुदावंद यीशु मसीह ने बाग गतसमनी में दुआ में गुजारी। अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने जब उन्होंने कहा 11वें बाब में हमें दुआ करना सिखा, तो यीशु मसीह ने उन्हें दुआए रबानी क्या की? कि तेरी बादशाही आए। So you can see that how the kingdom and the prayer, they both are linked together. इस कहानी में कैरेक्टर्स हैं जी, 2 कैरेक्टर्स हैं सिर्फ। बड़ी सिंपल सी कहानी लगती है बट इट्स सो रिच, क्योंकि इसमें क्या लिखा है जी? हिम्मत ना हारना चाहिए। तमसील कही, एक शहर में क्या था जी? एक काजी, पहले जज है, काजी था। ठीक है, और काजी कौन है जी? आपने पढ़ा, पहला हवाला जो पढ़ा क्या
जोहाशफत के बारे में कि जब उसने काजी मुकर्रर किए, ठीक है, जो सेकंड क्रॉनिकल्स रेफरेंस पढ़ा गया था, ठीक है, उसने काजी मुकर्रर किए। और ये काजी जो थे, ये मूसा के दौर में आपको याद होगा कि जब काजियों की पूरी किताब है, बुक ऑफ जजेस है, यशवा की किताब के फौरन बाद कौन सी बुक है? बुक ऑफ जजेस। तो ये जजेस थे ऑलरेडी। जनरली ये जजेस कौन होते थे? ये कहां से लिए जाते थे? कौन से लॉ, ये कौन से बार से ये डिग्री लेते थे? दे वर जनरली प्रीस्ट एंड लीवाइट्स। तो आप देखते हैं कि इवन पिछले 100 सालों तक भी जो यूरोप के अंदर जो रिलीजियस एलीट होती थी, ये जो आपने काले कोट का कॉन्सेप्ट आपने देखा है, जज क्यों काला कोट पहनते हैं, वकील क्यों काला कोट पहनते हैं? बिकॉज इन द वेस्टर्न कल्चर these were the attire of religious educated people. तो जो पादरी होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, जिन जिन मुल्कों में स्टेट क्रिश्चियन थी, वहां पर मोस्टली जो जजेस होते थे वो कहां से आते थे? वो सेमिनरियों से आते थे पढ़ के। आम उस वक्त बार लॉज नहीं होती थी। सो दैट्स हाउ दे कम। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ओल्ड टेस्टामेंट से आया कि काजी और काहिन और जो टीचर्स ऑफ द लॉ हैं, दे डील विद द रिलीजियस लॉ। बाज़ औक़ात सिविल लॉ भी वो क्या करते थे? वही डील कर रहे होते थे। आज भी देखें, पाकिस्तान में हमारे शरिया कोर्ट मौजूद है, सेम कॉन्सेप्ट, मजहबी लॉ मौजूद है। तो ये बंदा जो है, मुझे लगता है कि ही वाज फ्रॉम द फैमिली ऑफ लीवाइट्स, या लावियों में से होगा, या फकीयों या फरीसियों में से होगा, इनसे बाहर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन क्या करवाया गया? इंट्रोडक्शन ये है जी, काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह। सो करप्ट जज के तौर पे बताया गया। असी कहना साडा सिस्टम करप्ट है, यसुम दे दौर बड़े करप्ट लोग हैं। हर दौर में जुडिशियल सिस्टम करप्ट लोगों के हाथ में आता रहा है। जस्टिस, यू कैन नॉट अटेन जस्टिस, दैट्स व्हाई पीपल कॉल टू सुप्रीम जज। उसके सामने अपनी मेहनतों को क्या करते हैं? पेश करते हैं जी। आपने एक चीज नोट की है, पहले वो किसका जिक्र किया गया? चूंकि वो खुदा से नहीं डरता था, इसलिए उसे आदमियों की भी कोई परवाह नहीं थी। तो आपको नजर आ रहा है यहां पर 10 कमांडमेंट में से पहला हुक्म सबसे बड़ा क्या था? तो खुदावंद अपने खुदा से, ठीक है, उसी की इबादत करना। और सेकंड क्या था? अपने पड़ोसी से अपने बराबर, इंसान और खुदा को हमेशा साथ लेके चलना। बट ही वॉज टोटली डिनाइंग बोथ कमांड्स। तो करप्ट से करप्ट तरीन का जो इमेज है वो यहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ एक बेवा औरत है जी, ठीक है। बेवा का मतलब क्या है? शी इज वल्नरेबल, और वल्नरेबल ऐसी वल्नरेबल है, शी कैन नॉट अप्रोच टू द कोर्ट, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं वहां पर जो अदालतें लगती थी वो शहर के बाहर लगती थी, जहां पर लोग अपना कारोबार करते थे। आपने देखा होगा आज भी सिटी सेंटर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कोर्ट सारे कहां पर होते हैं? मोस्टली सिटी सेंटर में, टाउन हॉल्स, ठीक है, यानी वहां पर जहां पर सिर्फ उस पैट्रियार्कल सिस्टम के अंदर सिर्फ मर्द जा सकते हैं, औरतों का दाखला। और ये उस कॉन्टेक्स्ट की बात है जिसमें औरत की गवाही को वैसे भी पूरा नहीं माना जाता था। पब्लिक कोर्ट में उसकी अपीयरेंस और उसकी गवाही को बिल्कुल कबूल नहीं किया जाता था। यही वजह है, आपको याद होगा जब दोनों औरतें यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद भागी भागी गई हैं, तो दोनों शागिर्द भाग कर गए हैं ताकि क्या करें? वेरीफाई करें कि भैणा ने ठीक दसिया कि कोई रात को ख्वाब वेख के आ गई ने, ठीक है। सो दैट वाज द आइडिया कि दे वर ट्राइंग टू मेकिंग इट अफर्मेशन। सो बेवा, तीसरी अहम बात आप ये देखेंगे कि इस बेवा के बारे में कोई मर्द इसके घराने में मौजूद नहीं है जो पब्लिक कोर्ट में जाकर इसके लिए क्या कर सके। सो शी इज वल्नरेबल, मार्जिनलाइज फ्रॉम द मार्जिनलाइज, मार्जिन से भी परे की वो औरत है। अगेन दुआ की तरह जो बेवा औरतें हैं, इनका भी सब्जेक्ट लूका का बड़ा मशहूर और बड़ा पावरफुल थीम है। मसलन लूका की इंजील में सबसे पहले दुआ के बाद जो पहली बेवा इंट्रोड्यूस होती है वो कौन है पता है? हन्ना, 80 साल की बेवा। लिखा वो दुआओं और रोजों के साथ कहां रहती थी? हैकल में रहती थी, ठीक है जी। आगाज में ही है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री के आगाज में जब गए हैं अपने आबाई गांव नासरत में, वहां पर यीशु मसीह ने जब रेफरेंस पढ़ा है, आज ये नविश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ, लोग उसके खिलाफ हो गए, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जिस तरह एलिया सारपत की बेवा के पास भेजा गया था, गैर कौमों के पास, मैं भी आज से कहां जाऊंगा? गैर कौमों के पास। सारपत की बेवा, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में यीशु मसीह ने रेफरेंस दिया उसका।
नाइन शहर की बेवा का लड़का यीशु मसीह ने क्या किया? उस बेवा का एक ही बेटा था, मर गया, यीशु मसीह ने क्या किया? उसे जिंदा किया। रसूलों के अमाल में आप देखते हैं चर्च का पहला झगड़ा किस बात पर हुआ था कि ग्रीक स्पीकिंग बेवा औरतें जो हैं उनकी देखभाल ठीक नहीं होती और जो हिब्रू स्पीकिंग बेवा औरतें हैं उनकी देखभाल ठीक होती है। एंड द चर्च हैज अ इशू, बेवा औरतों के इशू के ऊपर। खुदा यीशु मसीह ने हैकल में चंदा डालते हुए किस बेवा औरत की तारीफ की? बेवा औरत जिसने सबसे ज्यादा, उसने यीशु ने कहा बाकी सारे थे अपने एक्स्ट्रा, बाकी सारे काम कार करा के सारा कुछ कार करा के देना, इसने सब कुछ जो इसके पास था क्या कर दिया है? वो डाल दिया है। शी हैज एक्सेप्टेड। तो आप देख रहे हैं कि बेवा और दुआ जो है ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सो इस सारी कहानी में मेरे जीजो व्हाट इज द कैच? कैच ये है कि उस शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर कहा करती थी। कंटिन्यूस टेंस है, परसिस्टेंट है, क्योंकि वो कोर्ट में तो जा नहीं सकती लेकिन वो इसके घर पे पहुंच सकती है। ठीक है। सो क्या लिखा जी कि और उसका क्या था जी? मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। आप देख रहे हैं अनजस्ट है लेकिन अपील क्या है? रेस्क्यू मी, विंडिकेट मी। एक बंदा जिसकी रेप्यूटेशन जिसे कहना चाहिए कि बेशर्मी की हद तक जो हो वो स्टेक पे हो और उसके पास जाकर ये कहना कि मुझे बचा, कुछ समझ नहीं आती बात। यानी इसको अपनी पब्लिक ओपिनियन का भी कोई, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसको कोई फिक्र नहीं है, इसको कोई रोग नहीं है कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। ठीक है, कि लोगों की परवाह भी नहीं करता, खुदा से वैसे नहीं डरता। ये बेवा औरत के पास कौन सी की है जो ये इस बंदे का दरवाजा खोल सकती है? एंड वन की, व्हाट इज दैट? परसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। हालांकि पता है उसको कि ये मेरा इंसाफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जिन्हें क्या ना, वो बेशरम जज के सामने बेवा भी की हो गई है, उसने भी अपने आप को कमिट कर दिया है कि मैं भी ये खड़ा नहीं छड़ना। ठीक है ना। सो जो ग्रीक वर्ड है यहां पर, इसका मतलब ये नहीं कि उसने उसकी आंख को नीला कर दिया है, कर करके ना, प्रोवोक कर करके, कहते हैं उंगली वाड़ वाड़ के, जैसे कहते हैं ना कड़मड़ी छेड़ना, उसको जैसे पंच मारने के बाद आंख के ऊपर निशान पड़ जाता ना, तो ग्रीक टर्म ये कहते हैं कि दिस इज काइंड ऑफ अ पेन जो कि वो बेवा औरत जो थी वो इस जज को दे रही थी। इसने कुछ अरसे तक तो ना चाहा, लेकिन आखिरकार उसने अपने जी में कहा, सेल्फ कॉन्वर्सेशन। आपको याद है वो जो मुसरफ बेटा था, वो भी अपने आप से क्या कर रहा था? उसने भी अपने जी में कहा था ना कि अब मैं जाऊंगा, बाप से कहूंगा। सो अगेन सेम फ्रेज, अपने जी में कहा कि गो, मैं ना खुदा से डरता हूं ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी इसलिए, क्या रीजन है इसके पास? कि ये बेवा मुझे क्या करती है? ये मुझे सताती है। ठीक है ना। शी इज प्रोवोकिंग मी कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली। सो क्या करूंगा मैं इसका? तो भी इसलिए कि मुझे सताती है, मैं इसका क्या कर दूंगा? मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरा नाक में क्या कर दे। उन्होंने कहा जी इन्हें मेरे दिमाग की दही बना दी है, इदू पहला कि कच्ची रस्सी बना के रड़के आए, इनू की करो, इनू कड्डो पाई। मतलब ये मेरा नाक में, बाज़ औक़ात आप देखा होगा, आपको पता भी होता है कि ये काम मतलब आप इनकार कर चुके हैं, इसके बावजूद बच्चे हों या पड़ोसी हों या घर में हों, रिश्तेदार हों, बट कितने लोग हैं, आप में से हर एक बंदे को एक्सपीरियंस हुआ होगा, सबसे ज्यादा कॉल आपको पाकिस्तान से आती होंगी तो पाकिस्तान की कॉल आती होगी की कहते होंगे? पैसे कर लो। इंडिया से आती होगी की कर लो? कुछ कर लो जी। अच्छा तो 100 कर लोगे ना, कहेगा यार है तो बड़े थोड़े नहीं की बनता है। अच्छा फिर मंगने वाले इंज मंगते जिवें तुहां करजा देना उन्होंने। ठीक है, मतलब उतड़ी दे नाल ना उतों रकम भी दसणगे जी इन्ने कर लो है, मतलब अजीब माइंड सेट है। तो मैंने जैसे एक बार पहले भी आपको कहा था कि व्हेन यू गिव समवन यू शुड हैव अ लिमिट, बिकॉज गिवर शुड हैव अ लिमिट, रिसीवर डजंट हैव एनी। तो ये एक बार कि देना शुरू कर दो, फिर भुल जाओ कि वो खूह दे विचों तुहाडी जान निकलेगी। नो नो नो, देन यू आर एंटरिंग
into the deep well which never dry for people over there. Okay जी, नाक में दम कर दे। खुदावंद ने कहा, यीशु मसीह ने इशारा किया, क्या कहा जी? व्हाट्स द कैच? यीशु मसीह ने कहा जी, सुनो ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। क्या कहता है? लिसन केयरफुली। और क्या कह रहा है जी? जब ये अनजस्ट, जिसको लोगों की कुछ परवाह नहीं है, इसके अंदर पब्लिक ओपिनियन का कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा की ये वैसे परवाह नहीं करता, अगर इस किस्म का करप्ट बेइंसाफ बंदा सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए एक ऐसी बेवा का, एक ऐसे बंदी का कर सकता है जिसको उससे रिटर्न में भी कुछ नहीं मिलना, सिर्फ अपने फिजिकल या मेंटल रिलीफ के लिए अगर वो इंसाफ कर सकता है, तो खुदा जो तुम्हारा बाप है, जो तुमसे प्यार करता है, वो कितनी तुम्हारी फिक्र करता होगा। यीशु मसीह ने एक बार पहले लूका ने बयान किया है, तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, आप उसने 2 एग्जाम्पल दिए ना, तुम में से कौन ऐसा है उसका बच्चा उससे मछली मांगे तो उसे सांप दे दे, या उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे? ना, कोई भी नहीं है। तुम जब कहते हैं तुम इस दुनिया में, इस गंदगी में, इस जहन्नम में, इस बदनस्ल लोगों के दरमियान रहकर जब तुम अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, तो फिर आसमानी बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा, इंसाफ क्यों ना करेगा? और फिर आगे जो इंट्रोडक्शन है जो लोगों का, जो खुदा के लोग हैं, वो क्या है? दैट्स इंटरेस्टिंग। बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का, हियर यू गो, दैट्स अ पावरफुल टर्म, बरगजीदा, चोजन वन, इलेक्ट वन। ये इलेक्ट वन कौन है जी? इटर्नल इलेक्ट, चोजन वन। पहले पतरस में, रोमन 12 में भी, और फिर इफिसियों पहले बाब की 4 आयत में लिखा हुआ है कि उसने बनाए आलम से पेशतर तुम्हें चुन लिया, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो चुने हुए कौन है? ये एक थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जी, जिसे हम प्री डेस्टिनेशन का नाम देते हैं। सो प्री डेस्टिनेशन इज द जॉन कैल्विन्स आइडिया, इंटरप्रिटेशन है उसकी, कि जो मसीही लोग, जो निजात याफ्ता लोग हैं, ये अपने पैदा होने से, जमीन पर आने से पहले बनाए आलम से, ऑन द बेस ऑफ इफिशियन चैप्टर 1 वर्स 4, कि ये खुदा ने कायनात बनाने से पहले ही इनको क्या कर दिया था? दे वर चोजन वन, दे वर इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड वन है। सो जो बरगजीदा लोग हैं, इस दुनिया में रहते हुए हम बेवा औरत की तरह हैं, जिन्हों कोई नहीं पूछता, जिन्हों कोई मुंह नहीं लाता, जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, जिसके पास कोई वॉइस नहीं है, जिसके पास कोई स्टेटस नहीं है, जिसके पास किसी किस्म की कोई अप्रोच नहीं है। जस्ट लाइक अ पुअर विडो, elected one in this world are vulnerable people, those who doesn't have any status and any voice anywhere, but when they reach to their heavenly Father, खुदा अपने elect one का क्या करता है? उनका इंसाफ ना करेगा। और ये elect one में कौन लोग हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या है, कैसे पता चलता है कि ये elect one है? How can we know that? क्योंकि आजकल तो नकली शरबत बड़े ना, उत्ते लेबल कोई और हुंदा है, अंदर कुछ और चाह हुंदी है। ठीक है ना? इधर लोग कॉफी के मग च पा के थले ब्रांडी वाड़ी हुंदी है। ठीक है ना? कई लोगों ने कई डब्बे उत्ते कवर में कुछ और है। ठीक है, लेबल उत्ते रूह अफजा दा, अंदर कोई और अफजा। तो आप देखते हैं कि कौन लोग हैं। हाउ डू वी नो कि लेबल लगा हुआ है या अंदर भी कोई असल चीज है, कि सिर्फ ब्लू लेबल ही है या रेड लेबल है? क्या है? इंसाफ ना करेगा जो, क्या साइन है जी? व्हाट इज द मार्क ऑफ दिस इलेक्टेड वन? मार्क क्या है? जो रात दिन उससे क्या करते हैं? फरियाद से मुराद है दोज क्राई आउट। आपने एक चीज नोट की है, पहले क्या आई है? रात, फिर क्या आया है? दिन। व्हाट डज दैट मीन? ये कोई अचानक से नहीं लिखा गया। पैदाइश पहले बाब के अंदर सो रात हुई और सो पहला दिन हुआ। वाई नाइट इज कमिंग अर्लियर, वाई डे इज नॉट? ठीक है ना? यहां पर ज्यूइश कैलेंडर चल रहा है जी। ठीक है, यहां पर ज्यूइश टाइम फ्रेम चल रहा है सूरज के साथ। रात दिन का मतलब यह है द प्रेयर साइकिल जो ज्यूइश टेंपल के अंदर चलता था। इट वॉज अ प्रेयर साइकिल जो रात दिन उससे क्या करते हैं?
फरियाद करते हैं। ये प्रेयर साइकिल कहां से आया जी? व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रेयर साइकिल? खुदावन यीशु मसीह जब रात दिन दुआओं की बात करते हैं तो वेयर ही इज रेफरिंग, क्योंकि ये जानिएगा कि ही वाज अ रैबाई, यीशु मसीह ज्यूइश माहौल में पले बड़े हैं, एंड ही वाज ग्रोन अप, ही वाज अ रैबाई एंड अ टीचर इन द सेकंड टेंपल जुडाइज्म का जो रिलीजियस सिनेरियो है फर्स्ट सेंचुरी के अंदर. So how, what kind of prayer he is referring? So मेरे जीजो, यहाँ पर जो दुआ की क्वालिटीज हैं, उनको जो ज्यूइश सेजेस हैं, जो यहूदी जो टीचर्स हैं, जो लॉ हैं, वो क्या बताते हैं जी? दे टोल्ड स्टोरीज, दे कहते हैं जी कि दुआ जो है एक्चुअली इट स्टार्टेड विद द 3 पैट्रियार्क्स जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया. नंबर 1 कहते हैं जी अब्राहम ने सबसे पहले इसको एस्टेब्लिश किया और वो खुदा की खिदमत करता था मोहब्बत के वसीले. ही लव गॉड. आइजक जो था, इसहाक जो था, he bring awe, he bring justice, he bring awesomeness in God's relationship. And number 3 याकूब के बारे कहते हैं जी कि he brought mercy. So उन्होंने खुदा की खिदमत कैसे की? मोहब्बत करके, खुदा के साथ रिलेशनशिप बनाकर और खुदा के रहम को अपनी जिंदगी में जारी करके. That's how they serve God. Since the time of Moses, there was no set of order of prayer. कोई सेट नहीं था कि आपने सिर्फ यही पढ़नी है. ठीक है, तो क्या हुआ? Each individual was duty bound to pray to God every day, but the form of prayer and how many times a day to pray was left to the individual. तब तक सेट दुआएं मौजूद नहीं थी. ठीक है जी. तो फिर क्या हुआ? इसीलिए आप देखेंगे जब 10 अहकाम दिए गए तो वो जो तौरात थी उसमें 613 कमांडमेंट्स थे. कितने कमांडमेंट थे? 613 कि हमने उस खुदावंद के हुक्मों को कैसे मानना है. और सबसे बड़ा पहला हुक्म क्या था? तो खुदावंद अपने खुदा से दिल, ताकत, जान से क्या रख? मोहब्बत रख. सो हाउ डू वी सर्व गॉड विद आवर हार्ट? बाय कीप इन कांस्टेंट कनेक्शन इन प्रेयर टू हिम. सो दुआ हमारा खुदा के साथ क्या है? इट्स रिलेशनशिप, ये राबता है. सो 3 दुआओं का सिलसिला कहां से शुरू हुआ? दाऊद ने सबसे पहले क्या किया? इसको इंट्रोड्यूस करवाया. ज़बूर 55 उसकी 8 आयत हम गाते हैं. शाम सुबह दोपहरा नु मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा ते नाले सब फरियादा. हुण ते मैं यहोवा अगे देवांगा दुहाई. एंड देन शाम सुबह दोपहरा नु मैं की करा? फरियादें, क्राई आउट. दानियल नबी, दानियल किताब 6 बाब में 3 बार दिन में यरूशलेम की तरफ रुख करके क्या करते थे? यही बेचारे कि उनको कहां डाल दिया गया? शेरों की मान में डाल दिया गया. अज़रा, जब ये लोग बाबली सीरी में गए हैं, वहां से जब वापस आए हैं, तो वापस आने के बाद जब सेकंड टेंपल बना है अज़रा और नेहमिया के दौर में, तब उन्होंने कहा कि जो नस्ल वापस आई है, ना इनको हिब्रू आती है, ना इनको कमांडमेंट्स पता है, ना इनको पता है हैकल. इन्होंने हैकल तो कभी देखी नहीं है, तो शरीयत इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, इनको दुआओं का पता नहीं है, तो इनको कैसे सिखाएं? हाउ वी एजुकेट फ्यूचर चर्च? उनको प्रिपेयर कैसे करें कि वो अपनी रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी को बरकरार रखें? हाउ टू टीच नेक्स्ट जनरेशन? तो अज़रा और बाकी जो स्क्राइब थे, जो फकीह थे, उन्होंने आने वाली नस्ल को बाबली सीरी के बाद उन्होंने जो 70 बुजुर्ग थे जिसमें नबी थे और 120 लोगों की जो जमात बनाई, दे ऑल फिक्स द टेक्स्ट ऑफ द डेली प्रेयर. तो ये जो पूरा प्रेयर साइकिल था, ये किसने फिक्स किया? बाबली सीरी से वापस आने के बाद लोगों ने उसको फिक्स किया. दैट्स हाउ प्रेयर साइकिल क्या हुआ? बनना शुरू हुआ. और फिर यहूदी जो रबाइस थे, फकीह थे, फरिश्ते, वही दुआएं सिर्फ पढ़ा करते रहे, नॉट बियॉन्ड दैट. कोई दुआ या दिली दुआ नहीं होती थी. आपने फिक्स टेक्स्ट पढ़ना है, सुबह ये पढ़ना है, दोपहर को ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है. So it changed every day. It changed every day, but they were fixed. You were not going out. जैसे हमारे मुसलमान दोस्त जो हैं, जब वो अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, they don't read anything else. सूरह फातिहा से शुरू होती है. सबसे पहले जो है वो कॉल दी जाती है. जब अजान मुअज्जिन अजान देता है, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ी जाती है. सूरह फातिहा के बाद उसके बाद 2-3 रकात और होती हैं जो आयतें पढ़ी जाती हैं. एंड देन देयर वाज सलाम फेरा जाता है. एंड दैट्स हाउ विद इन 5 to 10 minutes उनकी फिक्स लिटर्जी होती है, उससे बाहर नहीं जाते. इसी तरह
रोमन कैथोलिक चर्च में फिक्स लिटरेचर होती है एवरी संडे की, हवाले कौन से पढ़े जाएंगे, दुआएं कौन सी होगी। एंग्लिकन चर्च के अंदर बुक ऑफ कॉमन प्रेयर है। पूरी दुनिया में जहां जहां पर रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन, लूथरन चर्च होगा, उनकी फिक्स लिटरेचर होगी, वो उससे बाहर नहीं जाएंगे। दे ऑलवेज रीड एंड रिसाइट एंड एवरीथिंग डू अकॉर्डिंग टू द बुक। ये सिस्टम वहां से आया है। सो दैट्स हाउ द 3 प्रेयर का जो सेट है वो आया है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब ये कह रहे हैं ना कि जो उन बरगजीदों का जो क्या करते हैं, जो रात दिन उससे क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, उनकी दुआ सुनेगा जी, देर ना करेगा। सो मेरे जीजो, जितने लोग आप में से आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी टारगेट के लिए दुआ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में कोई चीज खुदा से चाहते हैं, एंड इफ यू रीच टू द पॉइंट वेयर आप समझते हैं कि बेकार है दुआ करना, यहां आपने दिल छोड़ दिया है, यहां आप ना उम्मीद हो गए हैं, डोंट डू दैट। दिस इज द प्रॉमिस। ये रिमाइंडर है खुदा की तरफ से। मुझे नहीं पता आपकी पर्सनल जिंदगी में आप क्या दुआएं कर रहे हैं, आप किस चीज को परस्यू कर रहे हैं, आप खुदा से क्या मांग रहे हैं, आई डोंट नो। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, डोंट ड्रॉप दैट। खुदा आपकी जिंदगी में उस काम को क्या करने वाला है, पूरा करने वाला है। गॉड इज लिसनिंग, ही इज नॉट गोइंग टू डिले एनी मोर। सो टेक हार्ट, जमे रहें, बने रहें। हमने गीत गाया था ना, बने रहो तुम, ठीक है ना, दिल छोटा ना करें। ही इज गोइंग टू डू दैट। प्रॉमिस क्या है, क्या वो उनके बारे में देर करेगा, सवाल ये है, दिस अ क्वेश्चन मार्क। और इसका रेटरिक आंसर क्या है, नो, वो देर नहीं करेगा। मेरा और आपका टाइम फ्रेम देरी में हो सकता है, शायद मैं हैसल हो सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यार 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, लेकिन खुदा का टाइम फ्रेम कैलेंडर अपनी जगह पर क्या कर रहा है, इट्स वर्किंग, गॉड इज डूइंग। सो डोंट लूज योर हार्ट। सवाल अगला जो है वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, मैं तुमसे कहता हूं कि वो जल्द उनका क्या करेगा, इंसाफ करेगा, तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा। वो सिर्फ हमसे क्या चाहता है, सवाल यह है कि क्या मैं ईमान पे खड़ा हुआ हूं कि नहीं खड़ा हुआ, आप ईमान पे खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए। दैट इज द मेजर क्वेश्चन। खुदा को तो प्रॉमिस है, ही इज गोइंग टू डू दैट। अगर बेईमान काजी कर सकता है तो खुदा जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो कितना कुछ ना करेगा। जो कहता है तुम्हारे सर के बाल तक गिने हुए हैं, हाउ मच ही कैन डू। सो मेरे जीजो, ये पैराबल दुआ की परसिस्टेंट के बारे में है कि डोंट लूज हार्ट। आप जिस चीज के लिए भी दुआ कर रहे हैं, कैरी ऑन करें, और खुदा अपने वक्त पर उसे क्या करेगा, उसे पूरा करेगा। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना है जी, शी वाज द इन कैलकटा, इंडिया में। तो मदर टेरेसा के बारे कहानी बयान करते हैं जी कि मदर टेरेसा एक बार अपने डोनेशन कैंपेन पर थी न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में एक बिजनेस मैन थे, उनकी एक काउंसिल थी। तो वहां पर वो गई, तो वो सारे एथियस्ट थे मोस्टली। उन्होंने कहा जी कि ये काम तो कर रही है हमारी साइड को, पैसे मंगन होंगी, देने को नहीं, मीटिंग रख लेते हैं पब्लिक फिगर के लिए, लोगों ने होना है, सारे कैमरे आएंगे, सारा कुछ आएगा, तो पर अम्मारा देना कुछ नहीं, ठीक है। आगे जी, तो स्टोरी वाले बयान करते हैं जी, बिफोर द मीटिंग हाउएवर the two executives had privately agreed not to give her any money. ठीक है, आपको चर्च में भी ऐसे बड़े लोग मिलते हैं, उन्हें गिरजे कोई पैसा नहीं देना, ਜਿਹੜਾ असा $100 $50 लाया ना अज तो 4 साल पहला का, उन्हें ही देना है, इदों उत्ते नहीं जाना, ठीक है। सो उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया जी, मीटिंग जरूर करांगे, मिलांगे सही हमारा नाल, पर देना कुछ नहीं, ठीक है जी। They listened to her plea, but they said, we appreciate what you do, but just cannot commit any funds at this time. Let us pray, Mother Teresa said. वो हम्बल से खातून थी, उन्हें और कुछ नहीं किया। उन्हें की क्या, उन्हें कहा जी अच्छा ना दो भाई, हो क्या करें, आओ दुआ करिए, ठीक है। Then let's pray. She then asked God to soften the hearts of these men. सो हमें भी दुआ करनी चाहिए कि जेड़े 50-100 उत्ते ना वादे, खुदा उन्होंने दिलों की करे, नरम करे तो खोले नाले, ठीक है। Soften the man. After saying Amen, Amen, she renewed her plea. उन्हें फिर दोबारा हमारा ने आख्या, ठीक है। She renewed her plea
that they renewed their answer that they were not going to commit any money. تو انہوں نے کہا جی نہ دینے کو نہیں ہے. کیا اگلی بار پھر ہمارا کیا, let us pray. پھر اس نے کیا کہا, آئیے دعا کرتے ہیں. She said yet again, at which point the executive relented and asked for a checkbook. بیوہ عورت یاد آئی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی میں کھڑا نہیں چھڑنا جنہیں چیر تک قاضی میرا انصاف نہیں کرے گا. سو میرے عزیزو, ریممبر دس, آپ جب خدا سے مانگتے ہیں اپنا برتن نہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے, اپنی حیثیت نہ دیکھیں کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ دینے والا کون ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی اپروچ کیا ہے, اور اس کی قدرت کیا ہے. So when you ask big things. When you ask things that change the world, that transform the world. Ask things that can leave a legacy. جیسے شاگردوں نے کیا دعا کی, ہمارے کیا بڑھا, ہمارے ایمان کو بڑھا. ٹھیک ہے, can we pray that کہ خداوند تو کیا کر ہمارے ایمان کو بڑھا. Can we pray that جس کا تعلق مٹیریلسٹک دنیا سے نہ ہو, تیری بادشاہی آئے اے خداوند. اے خداوند تیری کنگڈم دنیا کی حدوں تک پہنچ جائے. اے خداوند جہاں تک تیری کلام نہیں پہنچا وہاں تک پہنچے. اے خداوند جہاں تک تیری کلیسیا قائم نہیں ہوئی وہاں تک تیری کلیسیا قائم ہو. تو ہمارے علم کو بڑھا, ہمارے نالج کو بڑھا, ہمیں اویکن کر, ہمیں گندگی میں سے نکال, ہمیں لائٹ دے. These are the prayers which we need to ask. کیونکہ باقی جو پیکج ہے نا, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, تو کہڑا برانڈ لوانگے, یہ تو سارا آلریڈی خدا نے کیا کر دیا ہے. It's already promised. We don't need to pray for that. کیونکہ ایسی پرے کون کرتے ہیں, غیر قوموں کے لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کوئی امید. We have a greater purpose میرے عزیزو. آرٹیشیا سٹی چرچ کی کلیسیا کو خدا نے بلیس کیا ہے, ملٹیپلائی کیا ہے. خداوند آپ کے وسیلے کام کر رہا ہے. Ask big things and achieve great things from God. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. Hallelujah.